So good morning, all of you. Today we are going to start next chapter, that is constitutional design, chapter second of civics. Now this is a very interesting and very important chapter. Uh, I hope all of you already know something about the word constitution, because every country has a constitution according to which the government and the citizens, act, and the entire institution runs. So it is a very important thing. So in this chapter, we are going to study about different aspects of constitution, like what is constitution, then what is the importance of constitution, how it came into different countries, especially in India, and then some important concepts related to the constitutions. So now this is the overview. Overview means this is the introductory part. We noted in the previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. It means that in any democratic country in today's time, no government or no ruler. Here, ruler means the government, the head. It can be a president or a prime minister. He's not ready to do. He's not free to do anything. Whatever he wants. There are certain restrictions, there are foundations, there are rules and regulations which they have to follow. There are certain procedures according to which the government has to run, and that procedure is or framework is provided by the constitution. No government can work extra constitutional. वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं. They have to obey and follow the guidelines which are given in the constitution. तो इससे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट. कहीं गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे, कहीं कुछ गलत ना करे, लोगों के जो अधिकार हैं उनको उनसे छीन ना ले. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन देखता है? कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है. All such rules together are called constitution. So all the rules and regulations which are given in the constitution and which is followed by the government is known as constitution. Constitution is simply the supreme law of the land. जिस भी कंट्री का संविधान है वो उसके लिए सुप्रीम लॉ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है. बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन्स आर ऑल्सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. So we have to follow the whatever is given in the constitution. So constitution is the basic rule and regulation according to which the government and the citizens work. So in this chapter, we are going to ask certain questions like constitutional design of a democracy, why do we need a constitution, and then how constitutions came into existence for any country, how constitutions are drawn up, then who designs them and in what way, कैसे constitution को बनाया जाता है ना, कैसे चीज़ों को मतलब टैकल आउट किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. So now next is democratic constitution in South Africa. So we are going to start with the democratic constitution in South Africa, how democracy or how constitution came into being in the South African country. Uh, Africa, South Africa is a country which is located on the extreme southernmost point of African continent. सबको मालूम होगा जैसे कि अफ्रीका है, ये सपोज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है. यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका कंट्री है यहाँ पर. जस्ट एक मिनट. Yes. So democratic constitution in South Africa. So this is South Africa, which is located on the extreme southern side of African continent. And here a picture is given uh, of a very famous personality related to the South Africa. Uh, इनका नाम क्या लिखा हुआ है? नेल्सन मंडेला. तो ये जो है नेल्सन मंडेला की फोटो दी हुई है, बिकॉज जैसे महात्मा गांधी ने इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी आज़ादी में, फ्रीडम में, उसी तरह से नेल्सन मंडेला जो है उनका भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है इन द मेकिंग ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ऑल्सो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया. तो हम देखते हैं क्या है. Now, these are some words which are given by
Nelson Mandela. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. Now, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का नाम शायद आपने सुना होगा। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से, और ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द नॉन वायलेंस मूवमेंट। इनका भी यही मानना था कि किसी भी चीज़ को अटेन करने के लिए, किसी भी डोमिनेशन से लड़ने के लिए हमें जो है वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें हथियार की ज़रूरत नहीं है, बट हम पीसफुली भी रहकर किसी के भी जो है खिलाफ हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। तो उसी महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पे भी इन्होंने इन्होंने काम किया, और अपने साउथ अफ्रीका में जो भी इनको मतलब प्रॉब्लम्स थी, उनको उनके खिलाफ इन्होंने जो है काफ़ी मजबूती से ये लड़े ना। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इन्होंने जो वाइट डोमिनेशन था और ब्लैक दोनों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। वाइट डोमिनेशन आप समझते हो, जो वाइट पीपल थे जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर जो है रूल किया था, ये इनकी बात कर रहे हैं। और ब्लैक डोमिनेशन जो इनके खुद के देश के लोग थे, तो दोनों के साथ इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। और ये एक्चुअली चाहते क्या थे, ही वांटेड अ पीसफुल डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके रह सके, पीसफुली रह सके, एंड एवरीबडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द वर्क। सबको बराबरी का काम मिले, सब लोग मतलब अपने जो है सही तरीके से रह पाए। तो ये इनका ये यही चाहते थे। बट इफ नीड्स टू बी, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, मतलब ये इस चीज के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। तो अब देखते हैं उन्होंने आगे क्या किया। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। The difference between South Africa and other countries who were under the you know colonialism rule, मतलब जैसे इंडिया भी इंग्लिश पीपल के अंडर में था, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी जो अंग्रेज यहाँ पे इन्होंने साउथ अफ्रीका को कंट्रोल किया था। बट द मेजर डिफरेंस वाज दैट आफ्टर फ्रीडम, when India got freedom, white people or English people, they left India totally and they went to their own country. बट इन साउथ अफ्रीका दे सेटल्ड फॉर परमानेंटली। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो साउथ अफ्रीका को छोड़कर नहीं गए। आज़ादी के बाद भी उन्हें फ्रीडम तो दे दी उन्होंने, लेकिन वो साउथ अफ्रीका को छोड़कर नहीं गए। वो वहाँ के लोग वहीं पर सेटल हो गए, उनको वहाँ का जो है मतलब एरिया अच्छा लगा, उनको देश अच्छा लगा, तो वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए। लेकिन इंडिया को जो थे वो ब्रिटिश पीपल छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ पे वो सेटल हो गए। सो ये दिस वॉज द मेजर डिफरेंस। तो आज़ादी के बाद जब गवर्नमेंट बनी है, तो वो भी वाइट लोगों की ही गवर्नमेंट बनी। ठीक है, हमारे इंडिया में तो जैसे ही अंग्रेज छोड़कर गए, हमारी खुद की सरकार बन गई। जवाहरलाल नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर बन गए, हमारे खुद के देश के जो नागरिक थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में यही प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे फ्रीडम तो दे दी ब्रिटिशर्स ने इनको, लेकिन ब्रिटिश लोग जो थे वो छोड़ कर नहीं गए। उनको वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि वो वहीं पे सेटल हो गए, और जब आज़ादी उनको दे भी दी, उसके बाद उन्होंने जो सरकार बनाई, उसमें व्हाइट लोग का ही डोमिनेशन था। ब्लैक्स को बहुत ही कम जो है रिप्रेजेंटेशन मिला, उसमें व्हाइट लोग ही ज़्यादातर थे। तो नेल्सन मंडेला जो थे इस चीज़ के खिलाफ थे, और जब उन्होंने इस चीज़ की खिलाफत की, तो जो वहाँ की व्हाइट गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट का मतलब जो ब्रिटिश जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को ट्रीजन के उसमें इल्जाम में जेल में भेज दिया। ट्रीजन मतलब क्या होता है, गद्दारी। जब आप अपने खुद के देश और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मतलब गलत काम करते हो, तो उसको हम ट्रीजन कहते हैं। ट्रीजन मतलब गद्दार बोलना जिसको, ठीक है। तो इन पे गद्दारी का इल्जाम क्या लगा, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो जो व्हाइट गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी की, और उनपे जानबूझकर ट्रीजन का इल्जाम लगा दिया कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए तुम गद्दार हो। और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट जो जेल था, जैसे हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार काला पानी की सजा दी जाती थी, उसी तरह से वहाँ पे रॉबिन आइलैंड था साउथ अफ्रीका के पास में, वहाँ पे नेल्सन मंडेला को भेज दिया गया, जहाँ पे वो काफी समय तक उन्होंने अपनी लाइफ जो है 28 ईयर्स उन्होंने वहाँ पे, मतलब सोचो 28 साल उन्होंने जेल में काटे हैं। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in the country। तो जो ये आपके नेल्सन मंडेला थे, वो कर क्या रहे थे, एक तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, एंड साथ ही साथ वो अपार्थीड मूवमेंट, अपार्थीड जो पॉलिसी थी, जो व्हाइट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, उसके सख्त खिलाफ थे। अभी अपार्थीड क्या होता है, ये आपको बहुत जरूरी है समझना। अपार्थीड क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले इसी इल्जाम में जो है नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स के लिए रॉबिन आइलैंड, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार है ना, उसी तरह से रॉबिन आइलैंड पे इनको 28 साल तक जेल में बंद कर दिया गया। वो 28 साल तक जेल में रहे। नाउ व्हाट वाज अपार्थीड मूवमेंट, अब हम देखते हैं कि अपार्थीड मूवमेंट क्या होता है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड,
अपार्थीड इन हिंदी इज नोन एज रंग भेद, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर is known as apartheid, system of apartheid which was followed by the white government in South Africa। तो आज़ादी तो मिल गई थी साउथ अफ्रीका में, जो हमारे निग्रोज थे, जो ब्लैक पीपल थे, क्योंकि वहाँ के जो नेचुरल रहने वाले लोग थे वो तो ब्लैक पीपल थे। वाइट पीपल तो बाहर से आए थे, अंग्रेज जो थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद वहाँ रह गए और उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली और जो है अपार्थीड की पॉलिसी स्टार्ट कर दी ना। ये रंगभेद की पॉलिसी थी क्या, इस ये था एक्चुअली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कोई भी ऐसी चीज जो आपके बॉडी से इन्वॉल्व होती है उसको हम रेशियल कहते हैं। ऑलराइट, और ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही फॉलो की गई, इट वॉज यूनिक टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें कि यहाँ के ओरिजिनल लोग तो ब्लैक लोग थे, निग्रो थे, लेकिन जो वाइट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वाइट एंड ब्लैक कलर एंड ऑल्सो कलर्ड पीपल, ठीक है। वो किस जो वाइट लोग थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और जो वहाँ के निग्रो लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, उनको बिल्कुल इन्फीरियर मानते थे। और सिर्फ ब्लैक लोगों को ही नहीं, जैसे मिक्स कलर के जो थे, जैसे कि मिक्स कलर क्या होते हैं, जैसे आपकी जो इंडियंस हो गए, या फिर आप ब्राउनिश पीपल हो गए, चाइनीज हो गए, या जो भी अदर जो होते हैं कलर के, उनको भी वो मिक्स कहते थे, मतलब कलर्ड कहते थे। तो दो लोगों के ये खिलाफ थे, एक थे ब्लैक लोगों के खिलाफ और एक कलर्ड लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो इसको कहा गया रंग भेद की पॉलिसी। तो इसमें जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, जो व्हाइट लोग थे वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते थे ना, काले लोगों को या फिर जो कलर्ड लोग थे उनको उस होटल में खाना नहीं खाने दिया जाता था, उस बस में नहीं जाने दिया जाता था, या उन्हें उस स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था जहाँ पे जो है व्हाइट लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उस हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते जहाँ पे व्हाइट लोग का इलाज होता है। मतलब होता है ना, जैसे हर जगह पे उनको मतलब डिस्क्रिमिनेट करना। और जो आपने बहुत फेमस वो सुना होगा कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, ये बोर्ड लगा रहता था मतलब जगह जगह पे साउथ अफ्रीका में, जबकि उनका खुद का देश था व्हाइट लोगों का, और उन्हीं के साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में ये अंग्रेज आए, लेकिन वहां से वापस नहीं गए। एंड दे डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, स्किन की कलर को उसको डिवाइड कर दिया। जो नेटिव लोग थे वहाँ के वो ब्लैक कलर के थे, जो आप निग्रो जानते हो, ठीक है। तो वहाँ की आबादी 3/4 जो थी, ज्यादातर आबादी लोग काले लोगों की थी। देन और लोग वहाँ कौन थे, मिक्स्ड रेस के, मिक्स्ड रेस मतलब कलर्ड, जो कि इंडिया से होकर गए थे। तो ये लोग जो है इंडियंस के खिलाफ, और जो ब्लैक वहाँ खुद के लोग थे उनके खिलाफ ये लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो करते थे, रंग भेद की पॉलिसी फॉलो करते थे। नाउ ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, लेकिन ब्लैक्स के खिलाफ तो ज्यादातर था ये। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, वो जहाँ पे गोरे लोग रहते थे वहाँ पे इनको रहने से सख्त मनाही थी। देन वो वहाँ पे नहीं जा सकते जहाँ पे वाइट लोग मान लो कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ परमिट लेके जा सकते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये जितनी मैंने चीजें बताई, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये जितने भी एरियाज थे, पब्लिक टॉयलेट्स पर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। मतलब जिस सिनेमा हॉल में, जिस होटल में, जिस हॉस्टल में, जिस आपके बसेस में, जो आपके कार है, या फिर जितनी भी चीजें हैं, स्विमिंग पूल है, कोई घूमने वाली जगह है, जहाँ पे वहाँ पे व्हाइट और ब्लैक्स के लिए सेपरेट सेपरेट एरिया बना रहता था। इसी कहते हैं हम सेग्रीगेशन करना, अलग थलग कर देना। सेग्रीगेशन मीन सेपरेट रखना, ठीक है। हमारे इंडिया में भी तो ये पॉलिसी होती थी ना, ये जो हमारे शूद्र होते थे, अनटचेबल्स, कि इनको सेग्रीगेट करना। अगर गांव में गांव का जो पूरा मिडिल एरिया होता था उसमें सब हाई क्लास लोग रहते थे, हाई कास्ट के, और जो आपके शूद्र होते थे, अनटचेबल्स, उनको गांव के बाहर एक कोने में सदर्न डायरेक्शन में उनको भेज दिया जाता था कि आपको तुमको अलग ही रहना है, मतलब गांव के बीच में नहीं आना है। तो उसे सेग्रीगेशन कहते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर देते हो, रहने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हो, तो इसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। देन दे कैन नॉट इवन गो टू चर्चेज, बिकॉज वहाँ पे वाइट्स वर्शिप करते थे। देन जो ब्लैक्स थे, दे कैन नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, सो दे वर टेरिबली अटैक्ड। मतलब जगह जगह ये बोर्ड लगाना दैट ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये तो बहुत ही डिग्रेडेड एक सोच थी और बिहेवियर था वाइट लोगों का। तो ये सब चीजें बहुत लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं, उनमें से नेल्सन मंडेला भी थे। Since 1950, the black, colored, and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of the segregation. जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसी तरह से आपकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, जो कि अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि एक पार्टी की जरूरत होती है, एक अकेला आदमी तो नहीं लड़ पाएगा। सो ग्रुप वॉज फॉर्म एज ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
देन इसमें कौन कौन से लोग थे? दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी, मैनी सेंसिटिव वाइट्स वर आल्सो जॉइन the ANC. Now there was some white people also that who were sensitive, towards black people. That and they knew that whatever is going on with the black and colored people is wrong. So they also joined African National Congress to support the black and colored people against the movement of apartheid. Now, several countries denounced apartheid as and unjust and racist. Now, during 1960s time, most of the countries were had achieved freedom. तो मैक्सिमम देशों को आज़ादी मिल चुकी थी, तो उन्होंने जब ये सब देखा कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल हैं दे आर फॉलोइंग दिस अनजस्ट पॉलिसी, so many countries they supported the black and colored people in their movement. और उनको टॉर्चर भी किया जाता था, मारा भी जाता था ब्लैक लोगों को बुरी तरह से। तो ये सब चीज़ें जो है पूरे वर्ल्ड में पहुंच रही थी, मीडिया में आ रही थी और सब लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, सब इसकी खिलाफत कर रहे थे। नाउ टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, as protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could not no longer keep the blacks under their rule through repression. So as the time passed and the African National Congress became very strong, and the support from all over the world, it also grew for the black people. So now the momentum of the protest and struggle, it increased manifold in South Africa. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट बढ़ गया, विच बिकेम अनकंट्रोलेबल फॉर द वाइट गवर्नमेंट। जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी वो संभाल नहीं पा रही थी, इतना स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट अपार्थीड के खिलाफ जो है स्टार्ट हो चुका था, और बाहर से भी प्रेशर आ रहा था, दूसरे देशों से भी आ रहा था। So the white government they realized that now we could not put control over the black people through repression. हम उन्हें दबा कर जो है अपने साथ नहीं रख सकते, हमें एक दूसरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। सो दे चेंज देयर पॉलिसी। नाउ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड, मतलब जो लॉज उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव वाले जो कानून वो लेकर आए थे उसको उन्होंने वापस ले लिया। देन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो उन्होंने बैन लगा रखा था कि कोई भी ब्लैक लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं, या फिर मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था उसको सबको हटा लिया। देन 28 ईयर्स के बाद जो नेल्सन मंडेला थे उनको जेल से आज़ादी मिली, और वो 1994 26 अप्रैल 1994 को वो बाहर आए जेल से। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ, सोचो मतलब कितना टाइम लगा होगा, 28-30 साल लगे इस मूवमेंट को चलने में। जो हमें इतना आसान लग रहा है कि ये जो 30 ईयर्स तक ये सब मूवमेंट चलता रहा, तब जाके साउथ अफ्रीका में ये बदलाव आया। तो एक नया फ्लैग बना साउथ अफ्रीका का जिसमें सबको एक इक्वेलिटी दिखाई गई है। देन अपार्थीड गवर्नमेंट का जो है वो खत्म हो गई और नई गवर्नमेंट वहां पर आई। तो अब जब नई गवर्नमेंट आएगी तो नया संविधान भी आएगा। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. So as soon as the white dominance ended in South Africa, there was a fear that might black people they attack white population to take revenge, है ना। मतलब एक माहौल डर का बैठ गया कि जो व्हाइट पीपल हैं, ब्लैक पीपल हैं, वो व्हाइट लोगों के ऊपर अटैक करेंगे और अपनी जो भी उनके साथ जातियां हुई उसका बदला लेंगे। तो इसीलिए जो लीडर्स थे उन्होंने थोड़ा सा समझाया ब्लैक लोगों को कि आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। सो दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वुमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो अब एक नया संविधान बनके तैयार होने वाला था साउथ अफ्रीका में। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. The constitution gave its citizens and the most extensive rights available in any country. So 2 साल लग गए डिस्कशन होने में, डिबेट होने में, तब जाके जो है साउथ अफ्रीका में संविधान बना। And it was one of the best constitutions in the world because huge number of rights were provided to the citizen of South Africa. साउथ अफ्रीका के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। The preamble to the South African Constitution sums up of this spirit. The South African Constitution inspires democrats all over the world. A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. So 1994 तक जब तक अपार्थीड खत्म नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में, तब तक साउथ अफ्रीका को बहुत ही खराब देश माना जाता था कि यहाँ की सरकार बहुत ही खराब तरीके से काम करती है। लेकिन उसके बाद जो है नया संविधान बना, और उसके बाद साउथ अफ्रीका जानते हो वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज है। तो ये किस तरह से बदलाव आया आपको जानते हो। यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं संविधान बनने के बाद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर,
On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ है उसमें पुरानी और नई बातें दोनों का ख्याल रखा गया है और ये चीज ध्यान में रखी गई है कि अब आगे चल के कभी भी कोई रेशियल पॉलिसी या किसी को भी दबाने जैसी कोई भी चीज जो है आगे नहीं आएगी. But it is more than that. It is also a charter for transformation of our country into one which is truly shared by all its people. मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है नए संविधान में, चाहे वो ब्लैक लोग हों, चाहे गोरे लोग हों, चाहे औरतें हों, चाहे पुरुष हों, तो सबको बराबरी का अधिकार इसमें दिया गया है. तो नया संविधान जो है साउथ अफ्रीका का बनके तैयार हुआ. अब आपने इसमें जो है साउथ अफ्रीका का जो भी हमने पढ़ा, मैं आपको एक और बार उसका रिकैपिचुलेशन करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें. तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो नेल्सन मंडेला थे उनका जो थॉट वो क्या था कि वो अपने साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पे सब बराबरी के साथ, इक्वलिटी के साथ रह पाएं. बट साउथ अफ्रीका में जो है जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली फ्रॉम द वाइट डोमिनेशन, स्टिल जो वाइट लोग थे वहाँ साउथ अफ्रीका को छोड़ कर नहीं गए, वहीं पर सेटल हो गए. सो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज जो कि दूसरे देश के कंट्रोल में थे. तो जब वाइट लोग यहाँ पे सेटल हो गए साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार बना ली, अपनी गवर्नमेंट बना ली जिसमें वाइट लोग ज्यादातर थे और वाइट लोग डोमिनेट करते थे. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, व्हाइट साउथ अफ्रीका में दे स्टार्टेड फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ रंगभेद और अपार्थीड. अपार्थीड की पॉलिसी फॉलो की. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अपार्थीड, तो आप लिखोगे अपार्थीड इज अ सिस्टम वेयर इट इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन which is followed by the white government of South Africa against the colored people and the black people. And इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था on the basis of skin color. तो जो हमारे स्किन का कलर होता है उसके बेसिस पे भेदभाव किया जाता था, जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो भी थे आपके कॉलेजेस, देन बसेस जो भी थे, दे वर सेपरेट फॉर द वाइट पीपल एंड द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. सो जो गवर्नमेंट थी उसने डिफरेंट पॉलिसीज जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज जो है वो बना रखी थी. तो ये जो है पार्टी सिस्टम था. और उसके बाद नेल्सन मंडेला जो थे इसके सख्त खिलाफ थे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ. उन्हें इसके जब खिलाफत की इसकी, तो उनको उठा के ट्रीजन के इल्जाम में, देशद्रोह के इल्जाम में वहाँ की वाइट गवर्नमेंट ने उनको उठा के रॉबिन आइलैंड में बंद करवा दिया और अगले 28 साल तक वो वहीं पर बंद रहे. फिर उसके बाद जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वहाँ की मेन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, पार्टी थी, जिसने इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया. और ये जो मूवमेंट था इसने काफी प्रोटेस्ट किया, काफी स्ट्रगल हुआ, और जो वर्ल्ड सपोर्ट भी काफी मिला साउथ अफ्रीका को. इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी उसे समझ में आ गया था कि अब वो सप्रेस करके और दबा के यहाँ के लोगों को नहीं रख सकते. तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को वापस ले लिया, बराबरी का अधिकार दे दिया काले लोगों को, और फिर वो मिल बराबरी से रहने लग गए. और उसके बाद उल्टा क्या हुआ, व्हाइट गवर्नमेंट जो थी वहां से पूरी तरह से वो हट गई और दोबारा वहाँ का नया संविधान बना जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया. फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो निग्रो गवर्नमेंट जो थी, ब्लैक गवर्नमेंट वहाँ पे चुनी गई. तो इस तरह से जो है नई जो है संविधान बनाया गया. तो ये पूरा जो है आपका स्टोरी था साउथ अफ्रीका के बारे में. और इससे आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है. संविधान जो होता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारी सरकार चलती है. और अगर संविधान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है तो कभी भी जो है एक कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है. ठीक है, तो इतना आज के लिए हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता जो है क्यों होती है. क्योंकि संविधान के बिना जो है कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती है. सो बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन, कहीं कहीं जगह तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है और कहीं कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ओरल भी होता है. जैसे इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, वहाँ पे मतलब ओरली चीजें पास होती रहती हैं, वहाँ पे रिटर्न नहीं है. इंडिया में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और बहुत ही बड़ा संविधान बनाया गया है. ठीक है, तो संविधान जो है अब ये इसकी जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. उससे पहले जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आप पढ़ लेंगे इसको. और जो कॉपीज मंगाने का है वो मैं आपको बता दूंगी कि कब कैसे मैं आपकी कॉपीज चेक करूंगी. एक तो आप गूगल क्लासरूम पे भी इसको अपलोड कर देना फोटो खींचकर. आपने जो इससे प्रीवियस चैप्टर हुआ है आई होप कि उतना आपने कर लिया होगा. तो उतना जो है आप जो है गूगल क्लासरूम पे भी कर देना ताकि एक रिकॉर्ड रहेगा.